Hello students, welcome to biology class. Today we will start our first chapter of biology, that is the leaf. We have different kind of plants growing around us. Some plants grow in our gardens while some in fields. Some are tall while some are short. Some have strong stem and some have weak stem. Plants are of different sizes varying from microscopic forms to complex tall tree. They are different in size, shape, color of flowers, etc. However, some common features absorbed in all of the flowering plants are root, stem and leaf. Let us learn more about these parts of plant. In your surroundings, you see different kind of plants. कुछ plants छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ plants के strong stem होते हैं और कुछ plants के weak stem होती है. और ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स के जो साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. बट कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं प्लांट्स के जो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में सिमिलर होते हैं, डेट इज रूट, स्टेम एंड लीफ. नाउ वी लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट्स ऑफ प्लांट. अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ टू मेन सिस्टम, the root system and the shoot system. The root system is the underground part of the plant which develops from the radicle body. Radicle is the embryonic root contained in the seed of the plant. Roots of plant grow towards the ground and help in anchoring the plant to the soil. It also absorbs water and nutrients from the plant. Secondly, the shoot system consists of a stem, the part of a plant above the ground. It bears branches, leaves, flowers, buds and fruits. In this chapter, we will learn more about leaf, flower and fruit. Basically जो plant होते हैं वो two main system में consist होता है. Now you can look this diagram very carefully, then you come to know that this plant divided into two parts. You can see this part of this plant divided into two parts, that is shoot system and root system. Root system below the ground and the shoot system above the ground. अब what is the role of this root system? Root system का क्या role play करता है? Root system क्या करता है? ये soil से water and nutrients को absorb करता है. रूट सिस्टम क्या करता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करता है. एंड हम शूट सिस्टम क्या कंसिडर करते हैं, क्या कंसिस्ट होते हैं शूट सिस्टम में? फ्लावर्स होंगे, स्टेम होंगी, लीव्स होंगे, राइट, विच वी सी अबव द ग्राउंड. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. हम लीफ, फ्लावर और फ्रूट के बारे में आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ व्हाट इज लीफ? लीफ इज अ फ्लैट, thin and green expanded part of the shoot system. It is also known as the food factory of plant as it prepares food for all the parts of the plant. It arises from nodes of the stem. Unlike the stem, they grow up to a certain size. I already told you that लीफ जो है वो किसके अंडर आता है? शूट सिस्टम के अंडर आता है, क्योंकि जो लीफ है हम शूट सिस्टम में देख सकते हैं. और ये बेसिकली जो लीफ होता है वो कौन से कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है. एंड यू कैन कम टू नो दैट लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. क्यों लीफ को फूड फैक्ट्री बोलते हैं और किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ लीफ plants make their food, right? In your previous class you already studied that leaf prepare food for the plants, right? External structure of a leaf. The different part of a leaf are leaf lamina, leaf stalk, midrib. Leaf lamina, the green flat and expanded part of the leaf is called leaf lamina or leaf blade. The tip of the lamina is known as apex. Now you can see this diagram very carefully. You can see the expanded part of the leaf. This expanded part of the leaf is called leaf blade.
आपने लीफ देखा होगा, लीफ का जो सबसे ज़्यादा एक्सपांडेड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड बोलते हैं और लीफ लैमिना बोलते हैं. नेक्स्ट, लीफ स्टॉक. द बेसल पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द नोड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड पेट्यूल. नाउ सी दिस डायग्राम अगेन. ये जो स्टेम है दिख रहे हैं आपको, ये नोड के साथ अटैच हुआ है, और ये जब नोड के साथ अटैच होता है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पेट्यूल बोलते हैं. midrib. The petiole enters into the lamina, forms the midrib. The midrib branches out to form veins, which further beat branches to form venlet. So a network of veins and venlet arises from the midrib. Veins provide supportive framework to the leaf. Now again see the diagram. You can see these lines into the leaf. You can see these lines are called veins, and there is a dark line between the leaf. There is a dark line between the leaf is called midrib, or you can also know this midvein. Now, main functions of leaf. The primary function of a leaf is to make food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. Leaf also help in transpiration, that is loss of water through stomata, and give cooling effects to the plant. Leaves of some plants such as spinach store food. In plants such as bryophyllum, leaves gives rise to a new plant. Now, लीफ का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू डेट लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट. लीफ की हेल्प से जो प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. अब लीफ को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है फूड बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सनलाइट की एंड क्लोरोफिल की. दिस 4 इंग्रेडिएंट्स लीफ नीड टू प्रिपेयर फूड. क्या क्या चाहिए लीफ को? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ये इन चारों के प्रेजेंस में लीफ क्या बनाता है? फूड बनाता है. उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. लीफ ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा. आपने पढ़ा होगा इन योर प्रीवियस क्लास व्हाट इज स्टोमेटा. स्टोमेटा बेसिकली क्या होता है? लीफ के होता है जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है? अगर जो प्लांट है वाटर का लॉस हो रहा है, प्लांट में ट्रांसपिरेशन का लॉस हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको ट्रांसपिरेशन होने से रोकता है. एंड गिव्स कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट, एंड दिस स्टोमेटा गिव कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट. लीव्स ऑफ सम प्लांट सच एज स्पाइनेच स्टोर फूड. In plants such as bryophyllum, leaf gives rise to a new plant. अब कुछ ऐसे भी लीव्स होते हैं जो एक स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ स्पिनच, स्पिनच क्या करता है? फूड को स्टोर भी करता है. एंड द ब्रायोफिलम क्या करते हैं? अगर हम प्लांट ब्रायोफिलम का लीफ ही प्लांट ग्रो करना चाहेंगे तो हमको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है. हम लीव्स के साथ ही एक न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. Now you come to know that the main functions of leaf. It is used to make food. It is used to helps in transpiration, that is loss of water through stomata. It gives cooling effect to the plant. This stomata gives cooling effect to the plant. Leaves get modified into spines in desert plants. अब जो desert area में जो leaves होते हैं ना, वो modify कर लेते हैं अपने आप को. वो हम आगे further study करेंगे modification of leaves में. They help to plant to adapt to scarce water conditions by reducing the water loss of transpiration through the spines. These modified leaves also protect plants from grazing animals. As you know that desert area में जो water की scarcity होती है, water कम होता है, तो उसमें क्या होता है? leaves अपने आप को modify कर लेते हैं और जिसकी वजह से transpiration कम होता है, reduce होता है transpiration through the spines. These modified leaves also protect plants. और जब जो leaves है वो modify हो जाती हैं तो वो help भी करते हैं कि जो grazing animals, जो
हार्बिवोरस एनिमल से भी प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स को। काइंड्स ऑफ लीव्स। In our surroundings, we can see different type of leaves. They may be oblong, circular, needle-shaped, and tapered in shape. They may differ in terms of leaf margin, which may be complete, example, pipal or tooth, as in rose, or wavy, as in mango, asparagus or prickle poppy. However, in order to ease the study of kinds of leaves, we can broadly classify them as simple and compound leaves. बेसिकली आपने अपने सराउंडिंग्स में डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स ने काइंड्स ऑफ लीव्स लिखे होंगे। किसी की शेप इस टाइप की होती है, इफ़ यू सी दिस डायग्राम, इसको सिंपल लीव बोलते हैं, और किसी किसी प्लांट की लीव इस टाइप की होती है, उसको कंपाउंड लीव बोलते हैं। बेसिकली ये जो कंपाउंड लीव है आपने रोज़ प्लांट्स में देखी होंगी, आपने अपने गार्डन में रोज़ प्लांट में इस तरीक़ा के कंपाउंड्स देखे होंगे, कंपाउंड लीव बोलते हैं उसको। सिंपल लीफ, it is the type of leaf in which lamina of the leaf has a single blade without any incisions or cut. Marginal incision, if present, do not reach the midrib. For example, radish, mango, banyan, papaya and peepal. बेसिकली जो सिंपल लीफ होते हैं एकदम सिंपल दिख रहे हैं आपको, सिंगल ब्लेड लीफ होते हैं, कोई भी इंसर्शंस नहीं होता और कोई भी कट नहीं होता है। और एग्जाम्पल्स क्या हैं सिंपल लीफ के, कौन से प्लांट्स में सिंपल लीफ होते हैं? रेडिश, मैंगो ट्री में सिंपल लीफ होते हैं, बनियान ट्री, पपाया एंड पीपल। नाउ कंपाउंड लीफ, दिस टाइप ऑफ लीफ हैज लैमिना डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स. In this, the margin has incision which reach down into the midrib, leading to the formation of small leaflet. Therefore, the leaf appears as a group of leaflets. For example, rose, neem and prickle poppy. In order to distinguish between the leaf and the leaflet, we must locate the auxiliary bud. An auxiliary bud is always present at the base of the leaf petiole but not at the base of a leaflet. Now see the diagram again, compound leaf. अब इसमें क्या हो रहा है, जो लीफ है वो छोटे छोटे स्मॉल लीफलेट में डिवाइड हो गया है। सो यहाँ पर ग्रुप ऑफ लीफलेट बन गए। यू कैन सी जो लीफ है वो स्मॉल लीफलेट्स में डिवाइड हो गया है और ग्रुप ऑफ लीफलेट्स बना जाते हैं, उसको हम कंपाउंड लीफ बोलते हैं। अब ये आपने कहाँ कहाँ देखा होगा एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लीफ प्लांट? रोज, नीम एंड प्रिकल पॉपी, these are the example of compound leaf. Now you can understand what is simple leaf and compound leaf. You can see in your surroundings. Okay, type of venation. If we see a leaf carefully, we can easily locate the fine lines running within the lamina forming different patterns called veins. Veins distribute water and minerals to various parts of leaf blade. The arrangement of veins and their winglets with the leaf blade is called venation. There are two types of venation depending on the pattern formed. These are. अब venation क्या होता है? अगर आप लीफ को केयरफुली देखोगे तो आपको छोटी छोटी फाइन लाइंस दिखेंगी उसके अंदर। मैंने आपको दिखाया था, यू कैन सी अबव डायग्राम, ये छोटी छोटी फाइन लाइंस दिख रही हैं आपको प्लांट लीफ के अंदर। ये जो फाइन लाइंस होते हैं लैमिना के अंदर, इस लैमिना के अंदर जो छोटी छोटी फाइन लाइंस होती है ना, इफ़ यू मेक अ लीफ, तो ये जो फाइन लाइंस होती है ना छोटी छोटी, उसको हम क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। एंड जो वेन्स के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं उसकी हम अभी स्टडी करेंगे। What is the function of vein? Veins distribute water and minerals to various part of the leaf blade. Leaf blade के सारे पार्ट को वेन क्या करता है? वाटर और मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जो भी अरेंजमेंट होता है वेन का और वेनलेट का उसको हम वेनेशन बोलते हैं। टू टाइप्स के वेनेशन होते हैं, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलर वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, in parallel venation the veins run parallel to each other and join the midrib. This type of venation is seen in leaves of most of the monocotyledonous plants such as maize, lily, rice, sugarcane, bamboo, banana and grass. Parallel venation क्या होता है? Now you can see this diagram. Figure 1.5 parallel venation you can see. जो veins are in parallel, जो वेन्स है वो पैरेलल नहीं है, पैरेलली है मिडरिब को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे लीव्स में जिसमें जो वेनेशन होते हैं वो पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं और मिडरिब को ज्वाइन करते हैं,
इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और एग्जांपल्स क्या हैं इसके? मेज प्लांट में, लिली, राइस, शुगर कैन में इस टाइप के वेनेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे लीफ में। रेटिकुलेट वेनेशन, in this type of arrangement, when divides and redivide into a number of veinlet, the repeat division of vein leads to the formation of a network of veins and veinlets. This pattern is shown by leaves of dicotyledonous plants such as mango, peepal, guava, peach, tulsi, marigold, mustard, sunflower, orange, coriander, etc. In reticulate venation, you see, now again see figure 1.6 reticulate venation. These leaves, इसमें आप वेन्स को देखोगे एक नेटवर्क टाइप का बना रहे हैं, वेन्स एक नेटवर्क बना रहे हैं, फॉर्मेशन वेन्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ वेन्स, और वेनलेट्स में नेटवर्क बना रहे हैं, और जो इसकी साइड्स होती हैं वो एक नेकलेट शेप भी बना रहे हैं। यू कैन सी देयर इज ए नेकलेट शेप, एंड जो वेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क ऑफ वेन्स बना रहे हैं। इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल तुलसी, मैरीगोल्ड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ऑरेंज, कोरिएंडर, इस प्लांट्स में आपको रेटिकुलेट वेनेशन के लीव्स मिलेंगे। नाउ वी कैन वाइंड अप। इन दिस असाइनमेंट वी कवर लीफ, external structure of a leaf, main function of leaf, kinds of leaf, and type of venation. Again, read this chapter. Now, according to this chapter, I already sent you an assignment on 3rd April 2020. Fill in the blanks. Dash is the part of leaf by which it is attached to the node of system. उस क्या बोलते हैं उस पार्ट को जहाँ से नोड के साथ लीफ अटैच होती है? लीफ स्टॉक। डैश लीफ हैज़ अ सिंगल ब्लेड विदाउट एनी इंसिशंस और कट, ना कोई इंसिशंस होता है और ना कट होते हैं। वो कौन सी लीफ होती है? सिंपल लीफ। वाइल्ड पी एंड ग्लोरी लिली आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। वाइल्ड पी एंड ग्लोरी लिली किसके एग्जाम्पल है? लीफ टेंड्रिल्स के। डैश इज सीन इन एक्वेटिक प्लांट सच एज यूट्रिकुलरिया। Answer is bladderwort. These two fill in the blanks we will cover in next assignment. Okay? Give an example of a leaf modified into spines. Spines किस किस ट्री में होती हैं? किस किस प्लांट में होते हैं? कैक्टस, बेरबेरीज, पीचर, नेप्थेनस, टेंड्रिल, वाइल्ड प्ली, ग्लोरी लिली. Now MCQs. Which of the following part of a plant is also known as the food factory? Answer is leaf. किस पार्ट प्लांट के हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं? लीफ. द टिप ऑफ द लेमिना इज नोन एज, जो लेमिना की टिप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं। इस लेमिना की जो ये टिप है इसको हम क्या बोलते हैं? एपेक्स. पैरेलल वेनेशन इज सीन इन, जो भी आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चंस होगा वो सारे सही होते हैं, इसलिए हमने इसका आंसर ऑल दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस? कौन सी लीफ मॉडिफाई हो रही है स्पाइंस में? प्रिकल पॉपी. जो भी आपके चूज द करेक्ट आंसर में ऑप्शंस हो गए उसका आंसर है प्रिकल पॉपी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिड्यूस बाय द मेथड ऑफ वेजिटेशन प्रोपोगेशन? ब्रायोफ्लम. कौन से? ब्रायोफ्लम एक ऐसा लीफ है अगर हम इसको सॉइल में डालेंगे तो ये एक नया प्लांट राइज कर देगा. विद द हेल्प ऑफ लीफ अ न्यू प्लांट इज राइजिंग. We will cover in our next audio assignments. Okay? Fill in the blanks. Dash is the embryonic root contained in the seed of the plant. Radicle. The petiole enter into the lamina forming the midrib. जो petiole है वो lamina के अंदर जाता है. Now you can see this is the leaf, और ये जो petiole होता है ये अंदर तक जाता है, तो ये क्या बना रहा है? एक midrib बना रहा है. डैश बर्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द लीफ पेट्यूल. पेट्यूल के बेस में एक प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी बर्ड. डैश हेल्प इन क्लाइंबिंग.
प्लांट्स को क्लाइम करने के लिए क्या हेल्प कौन हेल्प करता है? लीफ टेंड्रिल्स। इस टाइप की लीफ टेंड्रिल्स होती हैं, वो हेल्प करती है प्लांट्स को क्लाइम करने के लिए। पिचर प्लांट्स एंड ब्लैडर व्हाट आर डैश प्लांट्स। जो पिचर प्लांट और ब्लैडर एक ऐसे प्लांट्स है जो कार्निवोरस है, मतलब ये इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। वेन्स प्रोवाइड सपोर्टिव फ्रेमवर्क टू द लीफ। लीफ को सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वेन? नो, फॉल्स। लीव्स गेट मॉडिफाई इनटू स्पाइन्स इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं। ट्रू। मस्टर्ड एंड सनफ्लावर हैव अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। फॉल्स। दे हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, दोनों में सेम अरेंजमेंट होती हैं लीव्स की। स्केल लीव्स हेल्प टू प्रोटेक्ट द बर्ड। जो लीव है वो हेल्प टू प्रोटेक्ट द बर्ड। ट्रू। ब्रायोफिलम कैन रिप्रोड्यूस वेजिटेशन बाय फ्रूट्स। रूट होते हैं उसमें ब्रायोफिलम में, हम इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय इट्स रूट्स। जड़ होती है इसमें। नो, फॉल्स। होप यू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर फेयर नोटबुक ऑलरेडी। नाउ one word answers. What is the name of tip of the lamina? Apex. What is the other name of insectivorous plants? Insectivorous plants का दूसरा नाम क्या है? Carnivorous plants. Which method is used to obtain a plant by combining two different plants? Grafting. Name the leaf which show parallel venation. एक ऐसे लीफ का नेम बताओ जो पैरेलल वेनेशन शो करता है, मतलब इस टाइप की पैरेलल लीफ वेनेशन शो करता है। बनाना। Which who discovered photosynthesis? Jan Ingenhousz. In these plants, leaves are highly segmented and modified into sacs called bladder. Bladdered what? Don't worry. In our next assignment, we covered this part also from your chapter. Leaf modify into thread-like coil strand. Tendril. I already told you, जो leaf है वो modify होती है coil form में. Give one example of simple leaf. People. To underground part of a plant which develop from the radical body. Root stem system. Give one example of plant with leaf spines. Cactus. Cactus plants में क्या होता है? Cactus में एक spines टाइप के होते हैं लीफ के ऊपर जो कि प्रोटेक्ट करते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स से और वाटर की कमी के लिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट द डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ। सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। डिफाइन लीफ लैमिना। द ग्रीन फ्लैट एंड एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड। डिफाइन लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक क्या होता है? द बेसल पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट अटैच टू द नोड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड पेट्यूल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना, ये जो पेट्यूल से इसमें नोड से स्टेम में कंबाइन होता है उसको हम पेट्यूल बोलते हैं, इस एरिया को पेट्यूल बोलते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ वेनेशन? वेनेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, डेट इज पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड देयर वेनलेट्स विद इन द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड वेनेशन। वेन्स और वेनलेट्स होते हैं लीफ के अंदर, उसको हम बोलते हैं वेनेशन। एक फाइन लाइंस जो होती हैं वो कोई भी शेप की होती हैं, कोई भी शेप की होती है, वो पैरेलल हो सकती है, एक स्ट्रक्चर बना सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं। ओके। व्हाट इज फ्लायोटैक्सी? फ्लायोटॉक्सी। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फ्लायोटैक्सी। जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का स्टेम और ब्रांचेस पर उसको हम फ्लायोटॉक्सी बोलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लीफ? द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लीफ आर लीफ लैमिना, द लीफ स्टॉक, मिडरिब। ये डिफरेंट पार्ट होते हैं लीफ के। वी ऑलरेडी कवर्ड। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेशन? कितनी टाइप की आर्टिफिशियल वेजिटेशन होती है? कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू। वी विल ब्रीफली एक्सप्लेन these different type of artificial vegetation in our next audio assignment. Okay, thank you students and have a nice day.